Welcome back everyone. I am Ravi from Brain Mentors. In this video, I am going to continue the tables concept that we was learning in the last session. So this was the table that we built in the last video. So we have a table with T head, T body, T foot. These kind of things we learned so far in my previous video. I told you about this table. In this video, we'll continue the concepts of table, few advanced concepts of tables. So let's see them. First of all, when we build tables, we have few text that we can insert inside table, few attribute also that we are going to learn. First of all, let me write a tag known as caption here. So there is a caption tag that we can write in our table. And we will do one thing. I'll just copy this table from here and paste it. And now in this table, I'm going to write down the caption. So basically captions are used to show the description of your table, like this is a demo table I have written here. Now if I run this program, the output will be like this. So this is the caption you can see here. Okay, so this was a simple tag. Now the main objective of this video is to build some table like this. So this is a kind of a table that I'll be telling you that how to make these kind of tables using HTML. So first of all, we need to learn about col span and row span. So let's see what is col span. So there are things that we need to learn: col span and row span. So col span and row span will be looking like this. If I insert one attribute here and I write col span is equals to 2. Okay, so there is a TD in my first row and I have written col span is equals to 2. Let's see the output. So it has combined two columns. So if I write col span is equals to 2, it means it is going to combine two columns like this. If I write 3, then it will combine 3 columns. Okay, so I hope this thing's clear to you. Like if you are writing col span in any of the column, it means it is going to occupy that number of column. We can use col span here also, like col span is equals to 3. So the output will be like this. Now you can see if we talk about these rows, then this has 1, 2, 3, 4, 5 column, but this row has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columns. Similarly, this header also have 7 headings. So we will do one thing. We will just comment out this thing. इसको जाकर हम comment करते हैं. And also comment these things. इसको भी comment करते हैं यहाँ पर. And then we will see the output. So that's how col span look like. Now, what is the impact of row span? Row span के बारे में देखते हैं. If I write row span, so it is going to combine that particular number of row. अगर आपने लिखा row span is equals to 3, इसका मतलब इसको क्या करना है? It is going to combine 3 rows like this. So basically 3 rows are not available. So instead of writing row span 3 here, or do one thing, let's write row span is equals to 2. Now the output will be, it is going to combine these 2 column. ये जाकर 2 column को combine करेगा. Rows को combine करेगा, sorry. So this is the row 1, this is the row 2. Both are combined with a single one. Now this has one extra column now. So we can comment this one. You can see warnings भी आपको दिखाएगा. So we can just comment it out. Now that's how row span and col span look like. कि अगर आप किसी पर row span या col span जैसा कुछ use करते हो, then this is the outcome. तो जो example हम लोग को बनाना है, it will be using row span and col span concept. After that we'll be able to build this kind of table. So I hope row span and col span is clear to you. So row span is used to combine the rows, col span used to combine the columns. Okay, now let's build that table. So to build the table, the same code, the same HTML we are going to use. The only difference is that we are going to introduce some row span and col span now. So first of all, let's figure out how many rows and columns we have here. So what do you think? How many rows we have to build? So basically we have 1, 2, 3, 4.
4 rows we have in total. Okay, so let's write down tr td, and this td is blank here. Then we have average. Now if you will see that average column is taking col span 2. You can see it is combination of 2 column. So that's why I will directly write col span is equals to 2, and also this particular column is taking row span of 2. It is combining 2 rows. So that's why you can write, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, रो स्पैन इज इक्वल्स टू 2. तो हम लोगों ने पहले चेक किया कि ये एवरेज कॉलम ने 2 कॉलम को कंबाइन किया है, एंड दिस रो इज कंबाइनिंग 2 रोज. सो दैट्स व्हाई रो स्पैन एंड कॉल स्पैन. आफ्टर दैट वी हैव वन मोर टीडी, और ये भी 2 रो स्पैन के बराबर है. इट इज ऑल्सो टेकिंग 2 रोज. सो लेट्स क्रिएट वन मोर टीडी. एक और टीडी बनाते हैं, एंड इन दिस टीडी हम लिखेंगे रो स्पैन अगेन इज इक्वल्स टू 2, और इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है रेड आइज. So this is the first row. Now the second one, we just have to write 2 TD. आपको यहां पर एक TD नहीं बनाना ये वाला, और ना ही ये वाला TD बनाना है. आपको सिर्फ ये height and weight वाला TD बनाना है, because this column will be coming from the upper row. So TR TD, and we have to write height, and one more TD weight. That's it. Okay, so अभी पहले इतना रन करके आउटपुट चेक करते हैं. What is the output till here? So output is something like this. So let's do one thing. Just give a border to this table and give a little bit of width, like 50%, so that the output will be more clear to us. तो अभी तक हम लोगों को कुछ ऐसा आउटकम नजर आता है. Now after that we have दिस रो एंड दिस रो. अभी हम लोग के पास ये 2 और रोज हम लोग को बिल्ड करनी है, एंड इन दिस नेक्स्ट रो वी डोंट हैव टू यूज टीडी बिकॉज दिस इज अ हेडिंग हियर. यू कैन सी दिस इज हेडिंग, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज अ टी एच, दैट इज हेडिंग. सो इट विल बी रिटन लाइक मेल्स, एंड सेकेंड वन वी हैव टीडी नाउ. इसके बाद 1.9, 0.03 समथिंग लाइक दैट. सो दिस इज 1.9. In the next TD we have 0.003, and in the next TD we have 40%, like this. Similarly we have the next row. इसके बाद हम लोग के पास एक next row आती है, और इसके अंदर हम लोग मेल्स की जगह फीमेल्स लिख देंगे, and I will keep the rest of the values same. बाकी values को same रखते हैं. That's it. You can see the outcome now. और हम लोग को इसको भी TH करना था रेड आइज को, सो जस्ट यूज वन थिंग, और यहाँ पे भी ये सबको हम लोगों को TH लिखना है. ओके, सो लेट्स राइट इंस्टेड ऑफ TD वी हैव टू राइट TH लाइक दिस. इसको भी जाकर हम लोगों ने TH कर देना है यहाँ पर. ओके, नाउ लेट्स सी द आउटपुट. परफेक्ट. तो बिल्कुल ऐसा आउटपुट जैसा हम लोगों ने यहां पर देखा वैसा आउटकम हमारे पास आ चुका है. लेट्स गिव सेल पैडिंग ऑल्सो, बट रिमेंबर दिस इज द ऑब्सोलीट, दिस इज डेप्रिकेटेड. ये जो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग हम लिखते हैं, ये बॉर्डर विड्थ सब कुछ डेप्रिकेटेड है. सिर्फ अभी हम लोग पढ़ने के लिए, फॉर द काइंड पर्पस, फॉर अभी के लिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं. सो आई होप इट्स क्लियर टू यू दैट हाउ टू मेक टेबल्स यूजिंग रो स्पैन एंड कॉल स्पैन. देयर इज वन मोर एट्रीब्यूट दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस. यहां पर एक और एट्रीब्यूट हम लोग यूज करेंगे, इसको बोलते हैं स्कोप. ओके, सो बेसिकली व्हेनेवर वी टॉक अबाउट टेबल्स, तो जब W3 स्टैंडर्ड्स की बात आती है, तो W3 के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सिर्फ नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं चलते, वो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए भी चलते हैं. जैसे कि अगर कोई पार्शियली ब्लाइंड है या फिर कोई ब्लाइंड है, those kind of people could also access your website. Visually impaired people uses screen readers that read out the information on web pages to them. तो उनके पास जो डिवाइसेस होती है वो वेब पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उसको रीड आउट करते हैं. उसको रीड आउट करने के लिए टेबल्स के अंदर भी कुछ पैरामीटर्स देने जरूरी हैं. जैसे कि एक पैरामीटर होता है हम लोगों के पास स्कोप, ताकि जो भी ब्लाइंड पर्सन है या पार्शियली ब्लाइंड है, जिस भी उनको कोई भी विजुअली कोई उनको प्रॉब्लम है, सो देयर इज अ पैरामीटर नोन एज स्कोप दैट वी जनरली राइट. सो दिस इज द स्कोप फॉर कॉलम, बिकॉज ये हम कॉलम बना रहे हैं यहां पर. तो जब भी आपको स्कोप मेंशन करना है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. तो आपने लिखा स्कोप इज इक्वल्स टू कॉलम, क्योंकि ये कॉलम्स हैं, एवरेज एंड रेड आई. एंड ऑल्सो यू कैन मेंशन द स्कोप एज कॉलम हियर,
एंड हेयर स्कोप विल ऑल्सो बी कॉलम, यहां पे भी स्कोप क्या होगा, कॉलम। लेकिन जब हम लोग ये रोज की तरफ जाएंगे, मेल्स एंड फीमेल, हेयर द स्कोप विल बी रो। तो ये जो एट्रीब्यूट हम लोगों ने यूज किया है अभी, स्कोप, दिस इज बेसिकली फॉर विजुअली इंपेयर्ड, पार्शियली जिनको दिखता है, जिनको प्रॉपर नहीं नजर आती हैं चीजें, सो उनके पास जो स्क्रीन रीडर्स होते हैं वो इस इंफॉर्मेशन को रीड आउट करना शुरू करते हैं कॉलम वाइज देन रो वाइज। तो जो आप स्कोप मेंशन करोगे उसी के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन रीड आउट की जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड द W3 स्टैंडर्ड्स। तो आपको W3 स्टैंडर्ड्स अच्छे से पता होने चाहिए, उसी के बेसिस पे आप जाकर अपनी टेबल्स बिल्ड करो, अपना HTML लिखो एंड देन वैलिडेट इट ऑन W3C। So this was a gentle introduction to tables, that how to work with tables. So I hope it's clear to all of you. And after using CSS, इस पे CSS लगाने के बाद हम लोग इसका आउटकम, इसका लुक एंड फील बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आज के टाइम में हम लोग को रिक्वायर्ड है, बिल्कुल वैसा हम लोग इसको बना सकते हैं। So that's it for the tables now. Now comes our one of the major part of HTML, that is form handling. फॉर्म हैंडलिंग हम लोग का HTML का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप अलग अलग तरह के फॉर्म्स फिल करते हो, लाइक देयर इज अ लॉगिन फॉर्म, देयर इज अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, देयर इज अ सर्च, जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो या फ्लिपकार्ट अमेजोन पे कुछ सर्च करते हो, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म। जब आप अपनी पिक अपलोड करते हो, इट मीन्स व्हेन यू पोस्ट समथिंग, आप एक फॉर्म फिल करते हो। When you do comment, आप कहीं पे जाकर कमेंट करते हो किसी के पिक पे, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म। जहां पे भी आप कोई इनपुट लिखकर एंटर करते हो, इट मीन्स यू आर फिलिंग अ फॉर्म, आप एक फॉर्म फिल करके उसको सबमिट करते हो। सो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स, बहुत सारे अलग अलग तरह के फॉर्म्स अवेलेबल है हमारे पास। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फ्यू बेसिक फॉर्म एलिमेंट्स जो हम लोग को HTML4 के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एडवांस लेवल ऑफ फॉर्म जो HTML5 के अंदर आए थे। आई विल बी जस्ट फोकसिंग ऑन HTML4। HTML4 के अंदर जो फॉर्म एलिमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट नहीं है जो अभी हम इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं। इन माई अपकमिंग वीडियोज़ जिसमें हम HTML5 के फॉर्म एलिमेंट्स सीखेंगे, उसमें आपको एडवांस लेवल के फॉर्म एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स नजर आएंगे। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट लेबल टैग, टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, इट मीन्स द सेलेक्ट टैग, radio buttons and the checkbox. So these are the form elements that I'm going to introduce now. ये form elements के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर अभी बात करने वाले हैं। So let's get started. अभी इसके अंदर देखो, आज की डेट में हम लोगों के पास HTML5 की अगर बात करें, वी हैव ईमेल, वी हैव डेट ऑफ बर्थ, हम लोग के पास बहुत सारे n नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म एलिमेंट्स हैं। बट राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द वेरी बेसिक्स वन फर्स्ट। So let's create a new HTML file 08 forms.html. So let's create one form here. So basically, first of all, I'm going to build this form inside a table. तो जो form हम लोग build करेंगे वो एक table के अंदर करेंगे। So let's create a table. Then instead of doing this, first let's build form. सबसे पहले आपको फॉर्म लिखना चाहिए। फॉर्म के दो मेजर एट्रीब्यूट होते हैं, वन इज एक्शन एंड वन इज मेथड। मेथड दो तरह के होते हैं, वन इज गेट एंड वन इज पोस्ट। बाय डिफॉल्ट मेथड इज गेट। आप इसको नहीं भी लिखोगे मेथड को, देन बाय डिफॉल्ट मेथड इज गेट। तो एक्शन पैरामीटर के अंदर, एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, हम लोगों को बेसिकली यहां पर एक पाथ लिखना होता है जहां पर आप फॉर्म सबमिट करने के बाद यूजर को ले जाना चाहते हो। सो वी हैव टू मेंशन अ पाथ हियर। वो पाथ आपके सर्वर का हो सकता है, किसी फाइल का हो सकता है। सो व्हेनेवर यूजर विल क्लिक ऑन सबमिट बटन, द पर्टिकुलर यूजर विल बी नेविगेटेड टू दैट पर्टिकुलर URL व्हाटएवर यू हैव प्रोवाइडेड इनसाइड दिस एक्शन। तो एक्शन के अंदर जो भी URL होगा वहां पर आप यूजर को नेविगेट कर दोगे। So right now I do not have any server side URL anything. So right now I'll be using hash. तो meanwhile जब आपके पास कुछ नहीं होता है, just write hash. Why? Hash हम जनरली क्यों लिखते हैं, जब हम A tag बनाते हैं उसके href में भी hash लिख देते हैं by default, so that if I click on that particular link, if I submit that particular form, it won't do anything. ये कुछ नहीं करेगा, by default उसी पेज पर आपको रखेगा और एड्रेस बार पे सिर्फ आपको hash नजर आएगा। Then we have a method get.
तो मेथड मैंने आपको बताया वी हैव टू टाइप ऑफ मेथड्स, वन इज गेट एंड वन इज पोस्ट। तो दो तरह के मेथड्स होते हैं, गेट रिक्वेस्ट whenever we are receiving something from the server, post request when we have to send something to the server। गेट मतलब कुछ लेना, पोस्ट मतलब कुछ भेजना। तो जब आपको कुछ सर्वर से डेटा चाहिए, लाइक आप गूगल सर्च करते हो, यू वांट द डेटा, आप लॉग इन करते हो, यू वांट द डेटा। तो जब भी आप लॉग इन कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, इसका मतलब बदले में कोई डेटा मिलने वाला, इट मीन्स यू हैव टू यूज गेट। बट when we have to send something, when we have to do a registration, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, you are submitting a form, आप अपना डेटा सर्वर को सबमिट करते हो, डेटाबेस को सबमिट करते हो, that's where we use post। But there is one big difference here that whenever we use get method, जो भी आपके फॉर्म की वैल्यूज होती है वो एड्रेस बार पे नजर आ जाती है। That I will show you in a minute। जैसे ही आप अपना फॉर्म सबमिट करोगे, जो भी आपने फॉर्म के अंदर लिखा होगा, एड्रेस बार के अंदर वो सारी वैल्यूज शो कर देता है। सो दैट्स वाई गेट इज नॉट सिक्योर्ड। अगर आप पासवर्ड लिखते हो, आप अपने कार्ड की डिटेल्स लिखकर ऑनलाइन शॉपिंग में सबमिट करते हो, तो यूआरएल बार पर, एड्रेस बार पे, इट विल शो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन वॉट एवर यू आर सबमिटिंग हेयर। यहां पर वो सारी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर देगा। लेट्स से यू गो टू flipkart.com, आप flipkart.com पे जाते हो, आपने यहां पर जाकर कोई प्रोडक्ट सर्च किया। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करोगे, इट विल डिस्प्ले योर क्वेरी हेयर कि आपने क्या लिखा था। सो दिस इज गेट रिक्वेस्ट। बट अगर हम किसी पोस्ट रिक्वेस्ट की बात करते हैं, लाइक अगर आप लॉग इन करोगे, ट्राई दिस लॉगिंग इन योर पेजेस, इन योर वेबसाइट, अगर आप यहां पर लॉग इन करोगे, देन इट वॉन्ट बी एबल टू शो यू द इंफॉर्मेशन हेयर। तो वो एक सिक्योर्ड रिक्वेस्ट है, वो एक सिक्योर्ड पैटर्न है जिसके थ्रू हम लोग अपनी रिक्वेस्ट को पोस्ट करते हैं, अपने डेटा को पोस्ट करते हैं टू द सर्वर। तो लॉग इन करते टाइम हम लोग को गेट नहीं करना, वी हैव टू यूज पोस्ट व्हेनेवर वी आर डूइंग लॉग इन। हम लॉग इन करते टाइम डेटा ले रहे हैं फ्रॉम द डेटाबेस, बट स्टिल वी हैव टू यूज पोस्ट बिकॉज इट इज सिक्योर्ड। So always keep these differences in the mind. So get to get the data, post to submit the data, but get is not secured, post is secured. Now let's create a table here. Inside this table, I'll be using tr, td, enter name, and here one more td. Inside this, I'll write input type text. So this is input type text we have written here, and then I'll be using one more tr. Inside this we have td, enter, password, and then we have td, input type is equals to password. So we have predefined input types. तो एक input नाम का tag हम लोगों ने use किया, then there is a type parameter, and then we have input type as text and input type as password. अब इसको रन करते हैं and let's see the output. तो हम लोगों के पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कुछ ऐसा आउटकम आता है, एंटर नेम, देन अ टेक्स्ट बॉक्स, एंटर पासवर्ड, देन टेक्स्ट बॉक्स। तो आप यहाँ जाकर कोई भी नेम लिखते हो और कोई भी पासवर्ड लिखते हो। देन वी हैव वन सबमिट बटन ऑल्सो। सो बाय डिफॉल्ट आई विल जस्ट लीव दिस टीडी एंड यूज सेकेंड वन टीडी, एंड इन दिस आई विल बी यूजिंग इनपुट टाइप सबमिट। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक फर्स्ट रो के अंदर नेम और टेक्स्ट बॉक्स बनाया। In second row we have password like this. In third row we have submit button. So you can see name, password. Now if you will submit, अगर आप इसको submit करोगे, what will be the outcome? The outcome will be nothing because action के अंदर हम लोगों ने अभी क्या लिखा हुआ है? Only hash. So it won't navigate you anywhere. ये कहीं नहीं लेके जाएगा. Just click on submit. You will see the hash here. That's it. So that's how a form is built. इस तरीके से हम लोग फॉर्म बिल्ड करते हैं। There is one important thing that I would like to show here कि हम लोग एक लेबल टैग को कैसे यूज करते हैं, क्योंकि फॉर्म्स जब भी हम लोग बनाते हैं there is a label tag that we use to put this thing inside a label. तो इसको बोलते हैं लेबल। So let's use a label tag and paste this here. Now label has a attribute. जब भी आप इस चीज को यहाँ पर लिखोगे तो ये बोलता है कि लेबल के पास एक एट्रीब्यूट है for. It is asking कि लेबल किसके लिए है? लेबल is for the text box और password box किसके लिए? So let me write down something here like it is for the username or you can write anything. यहाँ पे आपको जो लिखना लिख सकते हैं आप. Then there will be one parameter which will be similar to the label for. तो आपको input tag के साथ एक ID पैरामीटर देना होगा जो लेबल के साथ मैच करेगा. तो इसका फायदा क्या होगा? We'll see in the output and similarly I'll do this thing for here. यहां पर भी हम लोगों ने एक लेबल लिखा, pwd लिख देते हैं,
And after that, it is also asking like अगर मैं यहाँ पर ID नहीं लिखता हूँ, you can see there is an error. So it is saying the value of the 4 attribute of the label element must be the ID of a non-hidden form control. So it is asking you कि अगर आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स बनाते हो, पासवर्ड बॉक्स बनाते हो और आपने लेबल टैग यूज किया है, सो लेबल के अंदर जो 4 होगा दैट मस्ट बी लाइक रिलेटेड विद सम सॉर्ट ऑफ अ आईडी. तो और आईडी हर एक पेज पर यूनिक होनी चाहिए. रिमेंबर, ये आईडी और ये आईडी कभी भी सेम नहीं हो सकते और इस पेज पे ये आईडी दोबारा रिपीट नहीं हो सकती. ये चीज हम लोग CSS में भी सीखने वाले हैं. We'll learn this thing in CSS also that an ID cannot be repeated. So we have a text box, we have a password box and label for both these boxes. Let's see the output. What changes will have. Now, if you will click here, it means you can just go to this box. If you click here, you can go to this box. What if I click on enter password? You can see the focus is automatically set to the password box. If I click here, focus is automatically set to the name box. So label can be used so that in case if you are not clicking here, you can click here, you can click here. तो अगर आप एंटर नेम लेबल पे क्लिक करोगे, एंटर पासवर्ड लेबल पे क्लिक करोगे, तो आपका जो फोकस होगा वो बाय डिफॉल्ट उसके रेस्पेक्ट में जो टेक्स्ट बॉक्स होगा वहां पर सेट हो जाएगा. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट लेबल्स. तो यहां पर आपने इसकी लेबलिंग की कि दिस टेक्स्ट बॉक्स बिलोंग टू दिस लेबल एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस लेबल इट विल टेक मी टू दिस टेक्स्ट बॉक्स. सो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू फॉर्म्स, जिसके अंदर हम लोगों ने अभी लेबल टैग के बारे में देखा, पासवर्ड के बारे में देखा. एंड नाउ in the next video I will tell you more about these form, because in the next video I will tell you about how to make the combo boxes, how to use radio buttons, checkbox, these kind of things we'll be learning in our next video. So thanks for watching this video.